It is a video on a prokaryotic cell. Prokaryotes जो हैं, which organisms are prokaryotes? No, which have prokaryotic cell. The prokaryotes are bacteria. Then we have cyanobacteria, which we also called as blue-green alga, and we have mycoplasma. ये prokaryotes हैं. Their cells are prokaryotic cells. The bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. Mycoplasma is also known as PPLO, that is pleuro pneumonia like organism. So we are going to talk about the structure of a prokaryotic cell, and these are all the organisms which are prokaryote, and among all them the smallest prokaryote is mycoplasma. This we call it as smallest living cell भी है, बैक्टीरिया से भी छोटा है. This is smallest living cell, or this is smallest prokaryote without cell wall. No, it is the smallest prokaryote and it has no cell wall. Bacteria has a cell wall, cyanobacteria has a cell wall, but mycoplasma do not have a cell wall. And these are the smallest prokaryotes, and they are the smallest living cells, right? If you look at the size of mycoplasma, it is 0.3 micrometer in length. And if you see the size of bacteria, it is about, the size of bacteria is about 3 to 5. It is about 3 to 5 micrometer. So bacteria are 3 to 5, and they are still smaller than bacteria. They are the smallest, and they are 0.3 micrometer in length, right? So we'll see the structure of a typical prokaryote cell. The structure or the features of typical. We are not talking about anything in particular. We are talking about the features of a typical prokaryotic cell, right? So if you see a prokaryotic cell, it consists of, if we draw a cell, the prokaryotic cell, it consists of an outer cell wall. सबसे बाहर cell wall होगी, right? Other than the mycoplasma, right now we are talking about more about the bacteria and the cyanobacteria. So bahar there is going to be a cell wall, and the cell wall, it gives support to the cell and shape to the cell, right? ये cell wall है. Cell wall के नीचे एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन. एज यूजुअल सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट? और सेल मेम्ब्रेन जो है, इट इनक्लोजेस साइटोप्लाज्म. मैं बनाती जा रही हूँ, साथ साथ बताती जा रही हूँ. ये मेरा साइटोप्लाज्म है. So if you see a prokaryotic cell in general, बाहर you will have a cell wall. Cell wall के अंदर cell membrane, and the cell membrane will enclose cytoplasm. Cytoplasm में आपको क्या मिलेगा? Cytoplasm के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी. Cytoplasm में आपको मिलेंगे inclusions, और आपको मिलेंगे
राइबोसोम्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इंक्लूजन जो है, दो तरह के साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं। एक आपको यहाँ पे मिलेंगे ग्रैन्यूल्स, दूसरा आपको मिलेगा गैस वैक्यूल्स, राइट। सो आउटर सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, but otherwise the prokaryotes, all bacteria, all cyanobacteria, they have a cell wall. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में आपको इंक्लूजन्स मिलेंगी और राइबोसोम्स मिलेंगे। इंक्लूजन्स में ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मुझे कौन कौन से मिलेंगे? मुझे यहाँ पर कई तरह के ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, राइट, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, राइट, जैसे कि सल्फर ग्रैन्यूल्स, जैसे कि साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, जैसे कि साइनोफाइसिन, नो, ये डिफरेंट तरह के ग्रैन्यूल्स हैं जो मुझे एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। वॉल्यूटिन कौन से ग्रैन्यूल्स हैं? वॉल्यूटिन वो ग्रैन्यूल्स हैं विच स्टोर फॉस्फेट। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कौन से हैं? दैट स्टोर ग्लाइकोजन। सल्फर ग्रैन्यूल्स विच स्टोर सल्फर। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स विच स्टोर starch, and साइनोफाइसिन granules which store proteins. So you have a variety of granules, no? वॉल्यूटिन आपको कहाँ मिलेगा? वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कहाँ मिलते हैं? आपको किस प्रोकैरियोट के अंदर मिलते हैं? बैक्टीरिया में। ग्लाइकोजन आपको मिलेंगे बैक्टीरिया में, सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलेंगे बैक्टीरिया में, साइनोफाइसियन नाम से पता चल रहा है आपको मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया में। साइनोफाइसिन कहाँ मिलेंगे? साइनोबैक्टीरिया में, नो। सो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि एक प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मिलती हैं, and one of the inclusion is granules. So you have a variety of granules in different prokaryotes. So ये कुछ granules हैं which are found in bacteria and in cyanobacteria. उसके बाद बात करते हैं gas vacuoles. One is granules, other is gas vacuoles. gas vacuoles मुझे किस में मिलती हैं? कौन से प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं? सबसे पहली बात, जो ऑटोट्रोफिक होंगे। ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? सारे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये ऑटोट्रोफ्स हैं। ये सबसे पहले ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके एवोल्यूशन के बाद ही फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। ऑटोट्रोफिक मैंने विच कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो इससे जो है सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया से ही फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था, एंड द ऑक्सीजन केम इनटू एटमॉस्फेयर, और हमारा जो एटमॉस्फेयर था इट बिकेम ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे वो प्रोकैरियोट्स जो ऑटोट्रोफिक हैं, विच कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग सनलाइट। इसमें आपको मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया, लेकिन कौन से साइनोबैक्टीरिया? जो इक्वेटिक हैं सिर्फ। और जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज हैं, जैसे पर्पल बैक्टीरिया, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोफ्स हैं, और ये भी क्या है? इक्वेटिक हैं। तो मुझे ये ऑटोट्रोफ्स में मिलेगा विच कैन फोटोसिंथेसाइज। साइनोबैक्टीरिया तो सारे ऑटोट्रोफ हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जो इक्वेटिक हैं, और बैक्टीरियाज जो हैं जो ऑटोट्रोफिक है वो यही हैं बस।
पर्पल बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक है और ये भी क्या है, इक्वेटिक है। इनमें आपको गैस वैक्यूल्स मिलेंगे और ये गैस वैक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं इनमें, दे कीप देम अफ्लोट इन वाटर। ये जो है उनको सरफेस के ऊपर जो है फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। दे कीप देम अफ्लोट इन वाटर टू कैप्चर सनलाइट, राइट। सो ये जो है उनको ऊपर करते हैं एंड दे ब्रिंग देम इन अ बेटर पोजिशन सो एज टू कैप्चर द सनलाइट। सो आपको जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल मिलेगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, फिर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको क्या क्या मिलेंगे, इंक्लूजन्स, जैसे कि आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। मैं ये ग्रैन्यूल्स बना देती हूँ। बैक्टीरिया में अलग ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में अलग ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। देन आपको जो है वहाँ पर गैस वैक्यूल्स मिलेंगे, सभी में नहीं मिलते, तो वो एक जो है सभी में नहीं मिलते, आपको वो सिर्फ उन ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज में मिलते हैं जो कि इक्वेटिक है, राइट। एंड देन आपको साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे। तो मैं ये राइबोसोम्स बना देती हूँ। तो ये मैंने सारा के सारे क्या बनाए हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अलग है, इंक्लूजन्स अलग है। राइबोसोम्स आर नॉट इंक्लूजन्स, ठीक है। ये सब मिलेंगे। और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। यहाँ पर कोई आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट का, एंड it is present in a specialized region of cytoplasm which is called as nucleoid, right. The genetic material is not bounded by, there is no well defined nucleus with a nuclear membrane, and in the nucleus generally we have a genetic material. No, there is no nucleus bounded by any nuclear membrane, but the genetic material is present in a specialized region of cytoplasm. No, that region is called as a nucleoid that bears the genetic material. So this is the structure of a typical prokaryotic cell. So prokaryotes में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ये हैं और इनमें सेल वॉल भी नहीं है। और एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। वहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, और आपको जो है गैस वैक्यूल्स मिलेंगे इन दोज विच आर इक्वेटिक ऑटोट्रोफ्स, राइट। और आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। और यहाँ पे कोई न्यूक्लियस भी नहीं है टू हैव द जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट in a specialized region of the cytoplasm which is called as a nucleoid, right. So this is the structure of a prokaryotic cell, a general prokaryotic cell. अब जो है we'll move on to the bacteria. हम अब specifically प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को जो है हम बेस्ड ऑन देयर शेप कई तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया, जैसे कि कोकस बैक्टीरिया, जैसे कि विब्रियो बैक्टीरिया, जैसे कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया, राइट। बैसिलस बैक्टीरिया क्या है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। दिस इज अ शेप ऑफ बैसिलस, राइट। एंड व्हेन द बैसिलाई आर फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ टू और इन अ कॉलोनी ऑफ टू, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलस। एंड व्हेन you have bacillus in a chain, this is called streptobacillus, right. And when this is called streptobacillus, right. So you have bacillus which occurs singly
or in a group of two, or you have in a chain. So this is rod shaped. The coccus bacteria is spherical. So this is coccus bacteria. It is in a group of two. It will be called as Diplococcus. You can have the cocci bacteria in a chain. This is called as Streptococcus. Or you can have cocci in a bunch, like the bunch of grapes. This is called Staphylococcus. Right? So based on the shape we have bacteria. Then Vibrio is a comma shaped bacteria. This is called as Vibrio bacteria. This is comma shaped. Right? And then Spirillum is spiral shaped. Right? Like this. This is a Spirillum bacteria. So we can classify the bacteria based on its shape as the rod shape. Then we have coccus, comma shaped or spiral. And if it can occur singly, or if in a colony of two or a group of two, it will be called Diplobacillus. In a chain, Strepto, same is a terminology for cocci bacteria, and they can be found in bunch also. Then it is called Staphylococcus. Then we have comma shaped and spirum. So this is the classification based on the shape of the cell. And then we'll see the structure of a typical bacteria now, right? So this I have drawn a typical bacteria, which you can see this is a rod shaped bacteria. It is a bacillus bacteria. बाहर इसकी cell wall है. Cell wall के अंदर cell membrane है. Cell membrane के अंदर जैसे हमने कहा cytoplasm है. Cytoplasm के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ cytoplasmic inclusions है. You can see various granules, right? And then a gas vacuole I have not shown. These are granules, and then you have the ribosomes, and then the genetic material is present in a specific region of cytoplasm. This is a genetic material which is present in a specialized region of cytoplasm, and that specialized region is called as a nucleoid. So this is the, and then you can see some surface structures also, like you can see the flagella, because many bacteria are motile, so they can have one flagella, more than one flagella. And then you see some more structures here, like surface structures like villi, which we'll shortly see. And then some of the infoldings of the plasma membrane. These infoldings are called as the mesosomes. So this is a structure of a typical bacterial cell, and we'll study the structure, its all components, its cell wall, its cell membrane, and its mesosomes, its surface structures one by one, right? So सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवलप की, राइट? सेल एनवलप सबसे बाहर होता है. सेल एनवलप में तीन चीजें आती हैं. एक आता है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम सेल कोट भी बोलते हैं, right? And then we have cell wall, और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन. ये तीनों चीजें मिल करके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, और किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज दी ग्लाइकोकैलिक्स. इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? हम सेल एनवलप बोलते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स सब में नहीं होता, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, बट सम बैक्टीरिया दे हैव outer to the cell wall another layer which is called as glycocalyx. So हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल सबसे बाहर होगी, हमें मालूम है. It gives shape to the cell and it gives support to the cell, right? हम
बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टू कैटेगरीज एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव based on two features. Number 1, gram staining, right, and number 2, the structure of cell wall. So we have two types of bacteria. We have gram positive bacteria and we have gram negative bacteria. And which is gram positive or which is gram negative? This classification is based on two features. One is the gram staining and other is the structure of the cell wall. So gram staining क्या होती है? What is gram staining? हम gram staining की बात करते हैं, right? On the basis of gram staining, we have gram positive and gram negative bacteria. अगर हम बैक्टीरिया को ट्रीट करें with crystal violet dye, अगर हम इससे ट्रीट करें बैक्टीरिया को, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं दे ऑल टर्न ब्लू, राइट। अगर हम इसके बाद इसको ट्रीट करें आयोडीन के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और फिर उसको हम पानी से वॉश करें और फिर हम उसको अल्कोहल से ट्रीट करें, राइट, तो दोज विच रिटेन कलर, जो ब्लू कलर रिटेन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, और जो है लूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। सो बैक्टीरिया जो हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप। वन क्राइटेरिया इज द ग्राम स्टेनिंग। अगर बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट से करें तो सारे नीले हो जाएंगे। फिर अगर हम आयोडीन से ट्रीट करें और फिर हम पानी से उसको वॉश करें और अल्कोहल से, तो जो ब्लू कलर रिटेन करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो ब्लू कलर रिटेन नहीं करते वो ग्राम नेगेटिव है। तो फिर जिन्होंने ब्लू कलर रिटेन नहीं किया तो हम उनको देखेंगे कैसे, दे लूज ए कलर। तो इनका जो काउंटर स्टेन है, दे आर स्टेन्ड with the counter stain that is saffronin, right? So अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जिनका कलर नहीं आया इसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव है। तो हाउ विल यू सी द बैक्टीरिया, हम उसको फिर सैफ्रोनिन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। दिस इज ग्राम स्टेनिंग। दूसरा है वी कैन क्लासीफाई देम एज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तो ये हुआ जो ग्राम स्टेन लेगा, जो ग्राम स्टेन नहीं लेगा। दूसरा क्राइटेरिया है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, राइट। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनकी जो सेल वॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। एक आउटर लेयर है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और एक इनर लेयर है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव वो है, एक तो वो ग्राम स्टेन नहीं लेंगे, दूसरी बात उनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, उसमें बाहर, उसमें दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर, और बाहर वाली लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसकी जो आउटर लेयर है
राइट। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स मैंने विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, लाइपो मैंने लिपिड्स विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ऐसे देयर आर सो मेनी पॉलीसैकेराइड्स विच विल लर्न इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड्स प्लस पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी आउटर लेयर जो है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट फीचर इज, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है, एक हमने कहा जो आउटर लेयर है, एक तो वो बनी हुई है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की, राइट। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि आउटर लेयर में देयर आर प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं पोरिन्स। ये आउटर लेयर में पोरिन्स हैं। ये पोरिन प्रोटीन्स क्या है? नाम से पता चल रहा है, दीज प्रोटीन्स दे फॉर्म चैनल्स। नो, ये लेयर के अंदर चैनल्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि ये एक से दिस इज अ पोरिन प्रोटीन ना, जैसे मैं कहती हूँ पोरिन प्रोटीन है, तो पोरिन प्रोटीन क्या करेगा? पोरिन प्रोटीन विल मेक अ चैनल। आप देख रहे हैं ऐसे चैनल बन रही है। सो ये जो है चैनल किसकी बनी है? चैनल की जो बाउंड्री बनी है वो किसकी बनी है? पोरिन प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो ऐसे मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन्स क्या करते हैं? वो जो प्रोटीन्स हैं दे फॉर्म चैनल्स, ऐसे रास्ता बना लेते हैं लेयर के अंदर। तो एक पोरिन भी पूरी वॉल बना सकता है, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पोरिन्स मिलकर के उस चैनल की क्या बनाएंगे? वॉल बनाएंगे। सो ये जो है मेरे पोरिन प्रोटीन्स हैं। तो दीज आर टिपिकल प्रोटीन्स नो। ये तो यहाँ पर आपको जो है प्रोटीन्स मिलेंगे विच आर कॉल्ड एज दी पोरिन्स। ये पोरिन प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? दे फॉर्म चैनल्स। लेयर के अंदर ये अंदर चैनल्स, पोर्स बनाते हैं। और इन पोर्स से क्या होता है? जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मैंने वाटर लविंग नो, हाइड्रोफिलिक मैंने वाटर लविंग, या मैं बोलूँ वाटर सॉल्यूबल, या मैं बोलूँ पोलर। तो जो छोटे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं कैन पास। दिस इज अ फंक्शन ऑफ द पोरिन्स प्रोटीन। दे फॉर्म पोर्स, दे फॉर्म चैनल्स नो। ये बिल्कुल ऐसे करके चैनल्स बना लेते हैं उसके अंदर। एंड द चैनल्स सर्व एज अ पैसेज जहाँ से स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कैन पास। जैसे कि ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम स्टेनिंग शो नहीं करता। और इसकी जो सेल वॉल है उसमें 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर पॉलीसैकेराइड्स की बनी है लाइपो, और यहाँ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको हम पोरिन्स कहते हैं। एंड दोज पोरिन प्रोटीन्स दे फॉर्म चैनल्स इन द आउटर लेयर। वो आउटर लेयर के अंदर चैनल्स बनाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विच आर स्मॉल हाइड्रोफिलिक, राइट। और इनकी जो अंदर की लेयर है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। ये पेप्टिडोग्लाइकान की बनी है, ठीक है। पेप्टिडो का मतलब है पेप्टाइड चेन्स। पेप्टाइड चेन्स क्या होती है? आपने क्लास 10th में पढ़ा है। पेप्टाइड चेन मैंने when few amino acids join together, no, they form a short peptide chain. तो जो पेप्टाइड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जो छोटे अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं उनको पेप्टाइड चेन्स बोलती हैं। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकान है, इसमें छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स हैं। एंड ग्लाइकॉन रेफर्स टू पॉलीसैकेराइड।
सो हम इसको बोलते हैं इनर लेयर इज मेड अप ऑफ peptidoglycan polysaccharide which are associated with the peptide chains, and this is also called as murein. इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं. तो ये इसकी जो है वो अंदर की लेयर है, राइट. तो दिस इज दी वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर नहीं होती. राइट इसमें सिर्फ क्या होती है, एक ही लेयर होती है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूरिन. बस इसमें एक ही लेयर होती है, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकान. ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट. और यहाँ पे कोई पोरिन प्रोटीन्स नहीं होते, सब एक ही यहाँ पर लेयर होती है. जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे मैं बोलूँ बेसिलस सबटिलिस रॉड शेप बैक्टीरिया है. जैसे मैं बोलूँ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ये मेरे बैक्टीरियाज कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव. देन माइकोबैक्टीरियम, राइट. देन नोकार्डिया, ये मेरे ग्राम पॉजिटिव है. लेकिन ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान के अलावा कुछ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं. जैसे मैकोइक एसिड, माइकोइक एसिड, नो, ये आपको मिलेंगे माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया. ये भी ग्राम पॉजिटिव है, बट अदर देन पेप्टिडोग्लाइकान दे हैव सम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आल्सो लाइक माइकोइक एसिड्स. सो ये जो है मेरे ग्राम पॉजिटिव है. तो बैक्टीरिया को मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. अगर वो ग्राम स्टेन ले लेते हैं तो पॉजिटिव है, नहीं लेते तो नेगेटिव है. और जो ग्राम पॉजिटिव है उनकी सेल वॉल में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकान है, और जो ग्राम नेगेटिव है उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान भी है इनर लेयर, और जो बाहर की लेयर है वो भी इनकी लाइपोपॉलीसेकेराइड की है. एंड दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो कि लेयर के अंदर चैनल्स बनाते हैं या पोरेंस बनाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट, राइट. तो अगर हम इन बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर देखें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, तो जो ग्राम नेगेटिव है जिसमें आउटर वॉल भी है, ये ज़्यादा पैथोजेनिक है. इट इज़ मोर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मैंने डिजीज कॉजिंग, जो बीमारियां करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादातर क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड व्हाट मेक्स देम मोर पैथोजेनिक, इनकी आउटर लेयर. आउटर लेयर की वजह से क्या होता है, आउटर लेयर इज टॉक्सिक, पहली बात. नंबर 2, ऑटो जो बाहर वाली लेयर है वो उनको रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट द होस्ट इम्यून सिस्टम. मतलब अगर मेरी बैक्टीरिया में जाएगा तो आएगा बॉडी में, तो मेरा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट नहीं कर सकता, नो. अगर फाइट नहीं कर सकेगा तो बीमारी हो जाएगी. Then it gives resistance against many antibiotics and drugs. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स जो हैं they cannot penetrate, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकती हैं, and they cannot kill the bacteria, right. And then जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर की वजह से जो आउटर लेयर है वो
प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट्स द murine layer from lysozymes. So ये मैं आपको बता रही हूँ ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक क्यों है. आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, एंड आपकी जो बाहर वाली लेयर है ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट ड्रग्स, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, राइट. और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं और ड्रग्स जो हैं दे कैन नॉट पेनिट्रेट द बैक्टीरिया. एंड देन अनदर थिंग इज आउटर लेयर जो है वो अंदर की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम लाइसोजाइम्स. लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? लाइसोजाइम्स जो हैं ये एंजाइम्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अवर डिफेंस सिस्टम. ये कहाँ होते हैं? हमारे सलाइवा में होते हैं, ये हमारे टीयर्स में होते हैं एंजाइम. और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकान लेयर है उसको डिग्रेड करते हैं. राइट. इसका मतलब लाइसोजाइम जो है दे कैन किल द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. हमारे सलाइवा में खाने के साथ जो आते हैं या हमारी आंख में कुछ आ गया तो लाइसोजाइम्स होते हैं विच कैन किल द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं? उसकी जो सेल वॉल है उसको तोड़ देते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन को. लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन के बाहर आउटर लेयर भी है. सो वो आउटर लेयर क्या करती है? वो अंदर की जो म्यूरिन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम लाइसोजाइम्स. तो इसीलिए जो है जो लाइसोजाइम्स हैं वो भी बैक्टीरिया को जो है वो डिग्रेड नहीं कर पाते. तो लाइसोजाइम्स भी काम नहीं कर पाएंगे विच कैन अदरवाइज डिग्रेड द बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स काम नहीं कर पाती, दे कैन नॉट पेनिट्रेट द बैक्टीरिया. इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, लेयर टॉक्सिक. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि दीज बैक्टीरियाज दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज as compared to the gram positive bacteria. So the gram negative bacteria, they are more pathogenic. The reason is their outer, right? I hope you must have understood.